الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ آج جمعہ ہے جسے دنیا اسلام الوداع کے نام سے جانتی ہے۔ حالانکہ الوداع تو ہر ایک دن ہے، الوداع کا مطلب ہے رخصتی، تو ہر دن ہماری زندگیوں سے رخصت ہو رہا۔ 10واں رمضان آ گیا تو وہ بھی تو الوداع ہے، اب وہ واپس نہیں آنا۔ 20واں آ گیا وہ بھی الوداع ہے، واپس نہیں آنا۔ اور رمضان کے بعد بھی جو دن آ رہے ہیں وہ بھی الوداع ہے۔ ہماری زندگی کے جو دن، جو لمحات گزر گئے وہ سارے الوداع ہیں۔ ہم اس بات پر بہترین توجہ دیتے ہیں کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، یہ الوداع ہے، بات صحیح ہے، اب اس کے بعد کوئی جمعہ نہیں آنا۔ مگر گہرائی میں سوچو تو جو جمعہ پڑھ چکے وہ اب واپس نہیں آنا۔ جو 2010 میں جو جمعہ پڑھے وہ 2010 کا والا جمعہ اب نہیں آنا۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحاباؤں سے پوچھا تمہیں اپنی زندگی سے کتنی امید ہے؟ صحاباؤں سے کہا تمہیں اپنی زندگی سے کیا امید ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ عشاء کی نماز پڑھتا ہوں تو فجر تک کی امید رکھتا ہوں، اللہ مجھے زندہ رکھے گا۔ دوسرے صحابہ سے پوچھا تم بتاؤ تمہیں کتنی امید ہے اپنی زندگی سے؟ تو کہا یا رسول اللہ فجر پڑھتا ہوں تو ظہر تک کی تو امید ہے کہ اللہ زندہ رکھے گا۔ تیسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ ظہر پڑھ کے عصر تک کی امید رکھتا ہوں۔ چوتھے صحابی سے پوچھا تم بتاؤ کیا امید ہے تمہیں اپنی زندگی سے؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بس اتنی امید ہے عصر پڑھ کے مغرب تک پہنچ سکتا ہوں۔ ایک نے کہا میں مغرب پڑھ کے عشاء تک پہنچ سکتا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بتاؤ آپ کو کیا امید ہے زندگی سے؟ آپ کیا امید رکھتے ہیں زندگی سے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا میرے صحابیوں تم نے تو بڑا لمبی امیدیں رکھ لی زندگی سے، بہت لمبی امیدیں باندھ لی۔ کتنی امید باندھی تھی؟ فجر سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے فجر تک، بس اتنی امید باندھی۔ نبی نے کہا اے میرے صحابیوں تم نے بہت لمبی امید باندھ لی، تو پھر ہم اپنی امیدوں پہ غور کریں۔ ہم تو اگلی سال کی بھی سوچے بیٹھے ہیں نا، اگلی سال کی بھی سوچے بیٹھے ہیں کہ اگلے سال کیا کرنا ہے، اگلی سال کیا نہیں کرنا ہے، اگلی سال کیسے اپنے گھر کا جو ہے ماحول لے کے چلنا ہے، خرچے کو کیسے مینٹین کرنا ہے، اگلی سال تک کی امید ہے۔ مگر نبی سے پوچھا اے نبی آپ بتاؤ زندگی سے آپ کی کیا امید ہے؟ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے تو بس اتنی ہی امید ہے کہ میں پہلا قدم بڑھا کے اگلا قدم بڑھاؤں تو مجھے اتنی بھی امید نہیں ہے کہ وہ اب زمین پہ رکھا جائے گا، کہ میں اب وہ زمین پر رکھ سکتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر دن الوداع ہے۔ ہم یہ سوچا کریں کہ یہ جو جمعۃ الوداع ہے یہ اب اگلی سال ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ رمضان کا یہ رحمتوں بھرا مہینہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تب تک موت کے شکنجے میں ہم آ چکے ہوں گے۔ موت بڑا شدید شے ہے، موت میں بڑا تکلیف ہے، موت میں بڑا گھبراہٹ ہے، موت میں بڑا پریشانی ہے۔ اللہ اکبر، عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے۔ قوم والوں نے کہا اے عیسیٰ ہو سکتا ہے تمہارے کمال کی، تمہارے معجزے کی کچھ باؤنڈیشن ہو، تم لوگوں کو صرف 10 سال کا مرا ہوا مردہ ہی زندہ کر سکو، مگر اب تم اپنی مرضی سے زندہ نہیں کرو گے، جس قبر کو ہم بتائیں گے اس قبر کے مردے کو زندہ کرو گے۔ قوم جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے گئی ایک بڑا پرانی مزار، بڑا پرانی قبر پہ، قوم نے کہا اے اللہ کے نبی، اے عیسیٰ روح اللہ، آپ اس قبر کے مردے کو زندہ کرو۔ اللہ اکبر، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کمال دیا کہ مردے کو حکم فرمائے تو مردہ اللہ کے نام سے اٹھ کے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ نے قم باذن اللہ کی جب مہر لگائی، جب ضرب لگائی، جب ورد کیا قم باذن اللہ، وہ قبر کا مردہ، وہ پرانی قبر کا مردہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اور جب اٹھ کر کھڑا ہوا پوچھا کون ہو؟ پوچھا کون ہو؟ کہا میں نوح علیہ السلام کا بیٹا سام ہوں۔ عیسیٰ روح اللہ بڑا حیران ہوئے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے تو پوچھے یار یہ تو بتاؤ قبر میں اتنے دن رہا، قبر میں اتنی راتیں گزاری،
कब्र में इतने लम्हात गुजारे, इतने दिन और साल और वर्ष और सदियां गुजारी, बता कब्र में तेरा क्या हाल हुआ। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा साम कहता है, ए ईसा रूहुल्लाह, तुम पूछते हो कब्र का हाल बताओ। ईसा रूहुल्लाह, तुम पूछते हो कब्र के लम्हात बताओ। ईसा रूहुल्लाह, तुम पूछते हो कब्र की घड़ियां बताओ। ईसा रूहुल्लाह, पहले ये क्यों ना पूछते हो कि जब मलकल मौत ने बाजू थामा था तो कितनी तकलीफ हुई थी, जब रूह निकाली थी वो लम्हा कैसा था। कब्र का बाद में पूछना, ए ईसा पहले ये पूछो मौत का झटका कैसा लगा था। कसम अल्लाह की, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहता है मौत मेरी सदियों पहले हुई थी, मगर आज भी बदन में कड़वाहट है मौत की, आज भी मौत की कड़वाहट है, आज भी मौत का मजा है, आज भी मौत की कड़वाहट मेरे बदन में है। मैं क्या बताऊं वो लम्हा, कसम अल्लाह की हम भूल गए अपनी मौत को, हमने भुला दिए जो दिन गुजरे गुजर जाने दो। बचपन था खेतों खलियान में गुजार दिया, बच्चों के खेल कूद लहब लहब में गुजार दिया। जब जवानी आई तो दुनिया के ऐशो इशरत में गुजार दिया, तमाम अता में गुजार दिया। जब दुनिया और बढ़ती चली गई, हमारे जवानी आई, शादी हुई, वक्त औलाद में गुजार दिया, कमाइयों में गुजार दिया। जब बाल सफेद पड़े, बदन ने साथ देना खत्म कर दिया, बदन ने जवाब देना शुरू कर दिया, हाथों में कपाहट शुरू हो गई, तब भी ख्याल ना आया कि अल्लाह की बारगाह में जाता, सरमत वजूद हो जाता। तमाम उम्र रब की नाफरमानी कर गया, हजारों रमजान आए, हजारों रमजान निकल गए, कभी अल्लाह से ना कहा मौला दुनिया में यूं ही जिंदगी गुजार दी। आज हमारी कौम के सफेद दाढ़ियों वाले चौराहे पे बैठ जाते हैं, अलविदा पढ़ के फख्र करेंगे कि हाँ साल में एक दिन अलविदा पढ़ दिया। कसम खुदा की, जब तू दुनिया से अलविदा कहेगा तो तुझे कोई अलविदा कहने नहीं आएगा। दुनिया से अलविदा जब तेरा नंबर आएगा तो कोई तेरे लिए नहीं आएगा। याद रखना, नेताओं के जालिमों के जनाजे में इंसान तो बहुत होंगे, अगर तुम्हें वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें अपने जनाजे में शामिल करना है तो आज भी सर्व सुजूद हो जाओ। ये सफेद दाढ़ियां लेके तुम्हारा मार्केटों में बैठने का काम नहीं है, अल्लाह के घर में सफों में बैठने का काम है, सफों में बैठने का काम है। पता नहीं है कब मलकल मौत बाजू पकड़ ले, कब मौत आ जाए। कभी हमने यही नहीं कहा कि अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह हमारी खताओं को दरगुजर कर दे, अल्लाह हमारी खताओं को माफ कर दे। कभी हमने बड़ा पक्के दिल के हैं, बड़ा सिया दिल हो गए, हमें खौफ नहीं है, हमें रब का डर नहीं है। जिस दिन डर हो गया कसम अल्लाह की, तो मस्जिदों का, इमामों का, मुतवल्लियों का, अल्लाह के घर का, रमजान का हर एक का दब करोगे। और जिस दिन तुम्हारे दिलों में डर नहीं आएगा, जब तक के तुम बूढ़े हो जाओ, चारपाई पे मरते होगे, फिर भी तुम्हें कलमा नसीब नहीं होगा। अरे जो दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियां करता चला जाए, आखिरी वक्त में बुजुर्ग कहते हैं ना, जिसका आखिर अच्छा होता है उसकी मंजिल आसान हो जाती है। अभी भी वक्त है, रमजान खत्म नहीं हुआ, माफी मांग लो। और ये भी रमजान का आखिर है ना, जिसके आखिर रमजान अच्छे हो गए उसकी किस्मत अच्छी हो जाएगी। आज भी माफी मांग लो यार, तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है। बंदा अगर सच्चे दिल से मांगता है तो अल्लाह से बड़ा करीम है कोई, अल्लाह से बड़ा अता करने वाला है कोई, अल्लाह से बड़ा देने वाला है कोई। बंदा मांगे, और जब बंदा मांगेगा तो इंशाअल्लाह उसकी मांग पूरी होगी। आज अलविदा जुमा है, हर दिन जो आए हमारी जिंदगी में उन्हीं दिनों की तरह ये अलविदा जुमा भी रुखसत हो जाएगा। और ऐसे ही दिन रुखसत होते होते अनकरीब हम मौत तक पहुंच जाएंगे, अनकरीब हमें मौत का सामना करना पड़ेगा, अनकरीब हम अपने कब्रिस्तान में मदफन कर दिए जाएंगे, अनकरीब हमसे सवाल और जवाब होंगे, अनकरीब हम ऐसे बंदे होंगे, कुछ तो ऐसे दुनिया से जाएंगे जिसे बंदे कहेंगे मौला कब्र की मंजिल को आसान कर देना। जब जब बंदा उसे याद करेगा, दुआएं दिया करेगा। मेरी जिंदगी में भी ऐसे लोग आए, जब मैं हिफ्ज किया करता था, जब तालिब इल्मी का दौर था, ऐसे हाजी और ऐसे मस्जिद के नमाजी थे जो पढ़ने वाले बच्चों से बड़ा मोहब्बत किया करते थे, बड़ा शफकत किया करते थे। और बच्चों को खाने के लिए एक साहब तो ऐसे थे, पहले के टाइम पे पार्ले जी बिस्कुट ला के खिलाया करते थे पढ़ने वाले बच्चों को। कसम खुदा की, मुझे आज भी वो लोग याद हैं जो पढ़ने वाले मस्जिद के बच्चों पर शफकत किया करते थे, प्यार करते थे। मुझे आज जब जब उन्हें याद आती है, मैं तब तब उन्हें इशारे सवाब करता हूं, तब तब मैं उन्हें याद करके कहता हूं मौला जब हम पढ़ा करते थे, इल्म हासिल करते थे, वो हमसे बड़ा प्यार करते थे। मौला हमने तेरे कलाम से प्यार किया, उन्होंने तेरे कलाम की वजह से हमसे प्यार किया। मौला तो तू उनसे प्यार करना,
ऐसे लोग गुजरे, कसम अल्लाह की। उलमा फरमाते हैं जिन्होंने आलिमों से मोहब्बत की, जिन्होंने उलमाओं से मोहब्बत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र की मंजिल को आसान कर देता है। और जिसने आलिमों से मुखालिफत की, जिसने आलिमों का बुरा चाहा, अल्लाह उलमा कहते हैं कसम अल्लाह की, उसकी कब्र को खोद के देखना, उसका रुख, उसका चेहरा काबे की तरफ नहीं मिलेगा। बड़ा अजाब है। तो जो बंदा अच्छे तरीके से जाता है, दुनिया में समाज में मोहब्बत का पैगाम देके जाता है, लोगों पर शफकत करके जाता है, गरीबों की मदद करके जाता है, अइम्मा से दिल लगा के जाता है, कसम खुदा की दुनिया में वो रहे या ना रहे, उसे दुआ देने वाले हमेशा रहते हैं। दुआ देने वाले उसे हमेशा रहते हैं। इसी तरीके से बुरे आदमी का हिसाब है। जब वो दुनिया से जाता है, जब जब उसका नाम आता है, जब जब उसका जिक्र आता है, महफिल में बैठे हुए लोग कहते हैं अरे अच्छा हुआ चला गया, बड़ा मनहूस शख्स था, बड़ा बदतमीज शख्स था, बड़ा खुराफाती शख्स था, बड़ा पलीद शख्स था, ना तो अल्लाह की इबादत की, ना अल्लाह का फरमाबरदार बना, रसूलुल्लाह की सुन्नतों पे अमल किया, जमाने में लड़ाइयां खुराफाते फैलाकर चुगलियां करके आपस में लड़वाता था। ऐसे बन के मत जाना, क्योंकि कब्र एक ऐसी मंजिल है जो देखने में तो आसान और ठंडी लगती है, जो उसके अंदर गोता जन होता है, जो उसके अंदर जाता है, उसे पता चलता है कब्र और मौत क्या चीज है। इसलिए दुनिया के लहब लहब छोड़ो, दुनिया में जैसा अल्लाह के रसूल ने रहना बताया है उसी तरीके से रहो। जैसा अल्लाह के रसूल ने कल्चर और नेचर और जो सबक हमें दिया उसी तरीके से रहना सीखो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज अलविदा जुमा है। पिछली साल हम में लोग नहीं थे, अगली साल हम में जो मौजूद हैं वो अगली साल नहीं होंगे। सोचो तो सही, जो पिछली साल ये बैठ कर अकड़ रहे थे, इमाम मस्जिद से कुछ भी कहे हमें परवाह नहीं, मस्जिद का हाजी कुछ भी समझाए हमें परवाह नहीं, लोग हमारी खताओं को देखकर हमें समझाएं, माँ बाप हमें समझाएं, हमें परवाह नहीं। अजीजों, आज वो रो रहे होंगे, कभी मेरी तकरीर याद करके रो रहे होंगे, कभी माँ बाप की नसीहत याद करके रो रहे होंगे, कभी अपना गुजरा हुआ वक्त याद करके रो रहे होंगे, और गोया अल्लाह से ये कह रहे होंगे मौला एक बार जिंदगी और दे दे। अरे दुनिया में अजीज कौन है भूल जाऊंगा, माँ बाप कौन है भूल जाऊंगा, दोस्त कौन है भूल जाऊंगा, दौलत क्या है भूल जाऊंगा, एक बार जिंदगी दे दे मौला, सारी कायनात भूल जाऊंगा मगर तेरा दर ना भूलूंगा। कसम अल्लाह की, मगर अल्लाह कहेगा आज मौका नहीं देना, मैं समझाता रहा, आज मौका नहीं दूंगा। तो मेरे अजीजों, सबको मरना है। हमारे माँ बाप चले गए, हमारे अजीज चले गए, दादा दादी चले गए, दोस्त चले गए, जवान चले गए, बूढ़ा ये सोचता है मैं नहीं जाऊंगा, आबे हयात पी के आया। शर्म की बात है यार, जवान नहीं आता तो मैं ये सोच सकता हूं जवान है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी की सबसे कठिन मंजिल जवानी बताई है। तो मैं सोचता हूं जवान नहीं आया तो दुनिया की रंगीनियों ने रोक लिया होगा, मगर अल्लाह करम करेगा तो जवान आ जाएगा। अफसोस इस बात पे है, सफेद बालों वाला बूढ़ा मस्जिद में नहीं आ रहा, बैठा है चौराहे पे, क्या सोच के बैठ गया यार, क्या अल्लाह का करम इतना भी नहीं तुझ पे, तू अल्लाह की तरफ रुख करता और अल्लाह से कहता मौला क्या ऐसी बात है, मेरे हाथों में झुर्रियां पड़ गई, चेहरे की खाल लटक गई, बोहे लटक गई, बाल सफेद पड़ गए, मौला जब से पैदा हुआ आज तक कभी अपनी खुशदिली के साथ मस्जिद ना पहुंचा, इतना कौन सा मैंने गुनाह कर दिया जो अपने दर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए। ये सोचता है मैं नहीं जा रहा, बैठकर चौराहे पर कुर्सियों पर ये सोचता है मैं नहीं जा रहा। अरे ये तेरी गलत सोच है कि तू नहीं जा रहा, बल्कि सच तो ये है कि रब नहीं बुला रहा है। तू सोच रहा है मैं नहीं जा रहा, ये तेरी कहते ना अपनी मस्ती में मस्त रहे, ये तेरी दिल को तसल्ली है कि तू नहीं जा रहा है ना, ये तेरी दिल की खुशी है, तू ये सोच रहा है कि मैं नहीं जा रहा हूं। नहीं, हकीकत तो यह है कि रब ही नहीं बुला रहा है। तो कभी निदामत करके आंखें झुका के सर झुकाकर अल्लाह से अकेले में कहता मौला क्या ऐसी मेरी गलती हो गई, दुनिया के बच्चे मस्जिदों में आ रहे, जवान मस्जिदों में आ रहे, मैं बूढ़ा, कब्र में तो तेरे नबी से मुलाकात होने वाली है, मैं जाने वाला हूं दुनिया से, ऐसी क्या खता हो गई मौला जो तूने मेरे लिए मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए सोचने वालों सोचना, इस बात पर तवज्जो करना कि तुम्हें किस चीज ने रोक लिया। तुम्हें रातों को नींद ना आए तो तुम अल्लाह अल्लाह करते हो, तुम करवटें बदलो तो अल्लाह अल्लाह करते हो, नींदों के चैन खत्म हो जाए तो अल्लाह अल्लाह करते हो, तकलीफ आ जाए तो अल्लाह अल्लाह करते हो। अल्लाह जानता है कि तू किस नियत से पुकार रहा है, मगर वो रहीम है इसलिए तुम फायदे उठा रहे, वो रहीम है इसलिए तुम फायदे उठा रहे हो। तुम कहते हो अल्लाह
कसम अल्लाह के, अल्लाह तुम्हारे एक बार अल्लाह कहने से है, तुमने नमाजें नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, तस्बीहात नहीं की, फतरा अदा नहीं किया, ज़कात अदा नहीं की, तुमने जो है अल्लाह की राह में जो है नजराने पेश नहीं किए, मगर फिर भी इसके बाद भी रमजान निकाल दिए, तूने करवट पर चारपाई पे जब कर पड़ ली, तकलीफ हुई, तूने कहा अल्लाह कसम खुदा की, सोचो अल्लाह कितना प्यार करता है, तेरे एक बार अल्लाह कहने से अल्लाह आसमान के सारे फरिश्ते इकट्ठे करके कहता है आज मेरे बंदे ने मुझे याद कर लिया। जब बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा पैदा हुआ, बाप इंतजार करता है, माँ इंतजार करती है कब ये पहली बार बोलेगा, कब ये पहली बार बोलेगा। और पहली बार जब अब्बू कहता है, पहली बार जब अम्मी कहती है, सारा घर इकट्ठा करके दिखाती है, माँ देखो आज इसने अम्मी बोला है, आज इसने अब्बू कहा है। और बड़ा होता है कसम खुदा की, तो बिस्मिल्लाह के इंतजार में है, कब बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़े, कब पारा लेके कायदा लेके मस्जिद पहुंचे, तो हार पढ़ के बच्चे को समाने में फातिहा करा के जमाने को बताता है आज मेरे बेटे की बिस्मिल्लाह थी, आज इसने पहली बार कुरान पढ़ा है। तो जब तुम सारे लोगों को इकट्ठा करते हो, पहली बार इसने अम्मी कहा, पहली बार अब्बू कहा, तो सोचो तुमने जब पहली बार अल्लाह को मुद्दतों बाद याद किया, तकलीफ में याद किया, मतलब से याद किया, भले ही अल्लाह आसमानों के फरिश्ते इकट्ठा करके कहता है देखो आज अल्लाह मेरे बंदे ने मुझसे अल्लाह कहा, इतना प्यार करता है, फिर भी हम भूल जाते हैं। मेरे अजीजों, दुनिया सब फानी है। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिर वक्त था, हजरत आयशा सिद्दीक़ा, हजरत फातिमा ज़हरा पास बैठे, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कहा आयशा पानी लाओ, तो हजरत आयशा उठी और एक बर्तन में ये सोचकर पानी लाई कि हुजूर हो सकता है पिए, प्यास लगी, तो हुजूर ने वो पानी लिया और वो रख लिया। अल्लाह अकबर। मेरे अपने दिल के कानों से सुनना, दो आलम का मालिक मुख्तार है, जिसके इशारे पे अल्लाह ने कायनात चलाई, उसकी बात कर रहा हूं। नबी ने पानी मंगाया, पास रख लिया, कुछ देर के बाद नबी आखिर ज़मा उसमें उंगलियां डुबोते और अपने चेहरे पे छींटे मारते थे। आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी भाभी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, या रसूल अल्लाह आप चेहरे पे पानी क्यों मार रहे हैं? कहने लगे अल्लाह अकबर। नबी आखिर ज़मा कहते हैं बड़ा शिद्दत है, बड़ा गर्मी है, मुझे बेचैनी है, मौत की सख्ती बहुत अजीम है, मैं इसलिए राहत के लिए अपने चेहरे पर छींटे मार रहा हूं। अल्लाह अकबर। दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से बात आती है बंदक कल बाप, कहने लगे मैं फरिश्ता हूं। अल्लाह अकबर। फातिमा कहती है लौट जाओ, ये वाकया तुमने सुना है, मगर नबी तीसरी बार कहते हैं फातिमा लौटाना, ये मौत का फरिश्ता है, तुम अंदर चली जाओ, ये मुझे लेने आया है। अल्लाह अकबर। अंदर आए फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको बुलाना चाहता है, आपके जाने का वक्त आ गया। नबी आखिर ज़माने कहा रब बुलाता है तो ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर। और नबियों की देखो, कहने लगे हम नहीं जाएंगे, मूसा ने मलकल मौत को वापस भेज दिया था, है कहा हम और जिंदा रहना चाहते हैं, मगर नबी कहते हैं हम तैयार हैं, लेना चाहते हो ले जाओ। जब बाजू थामा, नबी आखिर ज़माने कहा है फरिश्ते ये क्या कर रहे हो, मुझे तो बड़ा तकलीफ हो रही है। फरिश्ता कहता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जलाल की कसम, मैं आपको तकलीफ दे सकता हूं, मैं आपको तकलीफ दे सकता हूं क्या? नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तू मुझे तकलीफ नहीं दे रहा रूह खींचकर? कहा या रसूलल्लाह, दुनिया में अगर सबसे आसानी से किसी की रूह निकाली जा रही है तो वो आपकी है। तो नबी ने कहा तू आसानी से निकाल रहा है? कौन नबी, कौन कह रहा है मुझे परेशानी हो रही? ताइफ के बाजारों में जैसे पत्थर मारे गए, उसने कहा मुझे तकलीफ नहीं है। ताइफ के बाजारों में पत्थर मारे गए, नबी से पूछा तकलीफ में हो? कहा तकलीफ में नहीं हूं। अबू जहल ने डंडे मारे, कहा तकलीफ में हो? तकलीफ में नहीं हूं। अल्लाह अकबर। मसाइब आलाम के पहाड़ पीठ पर ला दिए गए, पूछा तकलीफ में हो? कहा तकलीफ में नहीं हूं। शादी अबी तालिब के 3 साल गुजारे, कहा तकलीफ में हो? कहा तकलीफ में नहीं हूं। नबुव्वत के बाद जुल्म पे जुल्म बर्दाश्त किए, नबी से पूछा हुजूर तकलीफ में हो? नबी ने कहा तकलीफ में नहीं हूं। एक खजूर के 3 हिस्से कह के 3 लोगों ने बांट कर खाए, तब नबी से पूछा हुजूर तकलीफ में हो? नबी ने कहा तकलीफ में नहीं हूं। अल्लाह अकबर। जंग खंदक के मौके पर पेट से पत्थर बांधे, नबी से पूछा हुजूर तकलीफ में हो? कहा तकलीफ में नहीं हो। मगर आज जब फरिश्ता बाजू पकड़े खड़ा है, नबी ने कहा आज तकलीफ हो रही है, आज तकलीफ हो रही है। फरिश्ते ने कहा मैं कसम अल्लाह की आपको तकलीफ नहीं दे रहा, तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता। नबी ने कहा जब तू तकलीफ पहुंचाना नहीं चाह रहा तो तकलीफ हो रही है। नबी की आंख में आंसुओं से भर गए। कहा जब तू किसी को तकलीफ देता होगा तो क्या आलम होता हो, जब तू देना नहीं चाहता तो इतनी तकलीफ है, जब देना चाहता होगा तो कितनी तकलीफ।
तो सोचो अजीजों, गौर करो, इन मस्जिदों को नकली मत समझो कि इन मस्जिदों का काम ही नमाज पढ़ने का है। कसम अल्लाह की, कयामत में जब कोई साथ नहीं आएगा, इसकी ईंट ईंट पुकार के तुम्हें कहेगी मौला बख्श दे। इसने बड़ा मोहब्बत से सजाया था, बड़ा मोहब्बत से संवारा था, इसने अपने बच्चे ना देखे, इसने अपनी जेब ना देखी, इसने अपना घर घराना नहीं देखा। तेरे मकान को सजाने के लिए मौला ये अपने कारोबार बंद कर दिया करता था, अपनी मजदूरियां ठप कर दिया करता था, तेरे घर को सजाने के लिए चला आया करता था। मौला जिसने तेरे घर को सजाया, तो इसके नाम पे जन्नत को सजा देना। समझ रहे हो? इन्हें नकली मत समझो, मेरी कही हुई बात नकली मत समझो। अरे उस वक्त असली समझोगे जब मर जाओगे, तो उससे पहले आज असली समझ लो। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक कोई सच्चा और अच्छा मजहब है, वो मजहब इस्लाम। तो मेरे अजीजों, जरा गौर करो, तवज्जो करना अपने अमालों पर, और ये सोचना कि यार हम हर साल यूं ही बेफिक्री में गुजार देते हैं, हम कितने बड़े खसारे में। एक कदम तुम बढ़ाओ दीन की तरफ, मस्जिदों को संवारो, सजाओ। कसम अल्लाह की, तुम एक ईंट सवार के यूं रखोगे ना, तुम्हारे घरों की तकलीफें परेशानियां चली जाएंगी। अल्लाह हम सब के नमाज, तरावी, रोजा, ज़कात, फितरा, सदका और खैरात को कबूल करे और हमारी बख्शिश व मगफिरत करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।